سنیے عامر جی، مجھے آپ کے ساتھ سہاگ رات منانی ہے۔ شبانہ نے معصومیت سے اپنی جھپکتی ہوئی پلکوں سے ایسے کہا جیسے اب تک کی ساری معصومیت کی حدیں پار کر دی ہوں، لیکن جب اس کے منہ سے سہاگ رات کی بات نکلی تو عامر کے تو سچ میں ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران پریشان اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شبانہ کی اور دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر سے کہنا۔ شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور شبانہ نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ میں کہہ رہی تھی کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے نا، تو شادی کے بعد ہمیں بھی سہاگ رات منانی ہے۔ میں نے سنا ہے جب شادی ہوتی ہے تو دلہن دولہا بند کمرے میں ایک دوسرے کو بہت سارا پیار کرتے ہیں۔ دولہا اپنی دلہن کو ڈھیر سارے تحفے دیتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اور یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو اب جب ہماری بھی شادی ہو چکی ہے، بھلے ہی نہ دھوم دھام سے ہوئی ہو، نہ آپ دولہے بنے اور نہ میں دلہن بنی، بارات بھی نہیں آئی، لیکن شادی تو ہوئی ہے نا۔ عامر جی، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب میں عامر خان کی دلہن ہوں، تو اس حساب سے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اور آج کی رات آپ مجھے تحفے دیں گے، مجھے بہت سارا پیار کریں گے نا۔ میں تو بس یہی سب کچھ آپ کو کہہ رہی تھی۔ عامر چپ تھا، پوری طرح خاموش، جیسے شبد اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ سامنے کھڑی وہ ننھی سی لڑکی اتنی معصومیت سے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن شاید وہ اس باتوں کی صرف اوپری پرت کو ہی سمجھ رہی تھی، گہرائی میں اترنے کا اسے اب تک علم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں شبانہ ہلکے قدموں سے اس کے اور قریب آئی، اس کے بازو کو ہلکے سے جھکجھورتے ہوئے معصومیت سے بولی، عامر جی، آپ سن رہے ہیں نا؟ مجھے آپ کے ساتھ سہاگ رات منانی ہے۔ بالکل اسی معصومیت سے وہ دوبارہ بولی تھی، لیکن عامر کا دماغ اب سچ میں گھومنے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھسکا لی ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے سہاگ رات ہوتی کیا ہے؟ صرف 16 کی ہو تم اور دھوکے سے میری دلہن بن گئی ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ اور اوپر سے یہ بے وقوفی بھری ضد کی سہاگ رات منانی ہے۔ عامر اب سچ میں پھٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، حیرانی اور تھکاوٹ تینوں ایک ساتھ امڑ آئے تھے۔ کیا پتی کے رشتے اور سہاگ رات کو تم نے کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے؟ یہ گڈے گڑیوں کا کھیل نہیں شبانہ، یہ ایک رشتہ ہے جس میں ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، اور نہ کہ شرارت اور ضد۔ عامر اب اس کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا، اور اس غصے میں اسے اس رشتے کی نازکتا کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوں گے تو کمرے کی وہ ڈری سہمی شبانہ سسک سسک کے رو رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ وہ اسے کس طرح سمجھائے اور کیسے سنبھالے، اس کے ڈر کو کم کیسے کرے۔ الٹا وہ تو سہاگ رات منانے کی تیاری میں بیٹھی تھی۔ عامر کی ڈانٹ پر شبانہ چپ چاپ کھڑی تھی، لیکن آنکھوں میں نمی چمکانے لگی۔ نچلا ہونٹ معصومیت سے باہر نکلتے ہوئے وہ عامر کی اور اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا
आखिर ऐसा क्या है सुहागरात में जो आप मुझे इतना डांट रहे हैं? जब मैंने 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा था, तब तो मुझे आपने नहीं डांटा था, बल्कि सबसे जबरदस्ती मुझे ये सब दोहराने के लिए बोला था। तो ये शादी भी एक रस्म थी ना, और सुहागरात भी शादी की एक रस्म होती है। तो फिर इस रस्म को करने के लिए आप मना क्यों कर रहे हैं और ऊपर से मुझे डांट भी रहे हैं? वो अब भी समझ नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ सोचा नहीं था और इस बात को पूछ भी लिया था, और यही सवाल आमिर के सीने में फिर से जैसे आग बनकर उबल गया। तुम चुपचाप सोती हो या मैं तुम्हारे मुंह बंद करने के लिए कोई तरीका अपनाऊं? वो गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी ओर बढ़ा और फिर उसे घूरने लगा। वो खुद को उसकी नज़रों से बचाती हुई पीछे हट गई और वो उससे झटकता हुआ गुस्से से नाइट सूट उठाकर बाथरूम में चला गया। शबाना थक निकली हुई थी, बेड पर बैठ गई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। ये तो राजी ही नहीं हो रहे। मैं सुबह बड़ी मालकिन को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनका कहा हुआ काम नहीं किया, तब तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो घुटनों में चेहरा छुपाकर देर तक बैठी इसी बारे में सोचती रही। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और आमिर खान भीगे बालों को तौलिए से पोंछता हुआ बाहर निकला। उसकी नज़र एक पल को बेड पर बैठी शबाना पर पड़ी थी, लेकिन बिना कुछ कहे वो सीधा जाकर आईने के सामने खड़ा हो गया। सो नहीं, अभी तक उसने लापरवाह से अंदाज में कहा, जैसे कुछ महसूस ही न किया हो। उसके दिल में कहीं एक थोड़ा सा सुकून था कि शायद अब उसके दिमाग से सुहागरात का कीड़ा निकल चुका है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शबाना की नज़रों में अब भी वही मासूम ख्वाहिश तैर रही थी। वो अभी भी उस पल में उलझी हुई थी। उसने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। 6 फुट से निकलता हुआ कद, तीखे नक्श, भीगे बाल जो तौलिए से रगड़कर पोंछने की वजह से इधर उधर बिखर गए थे, जादू सा असर रखने वाले चेहरा, खूबसूरत और रौबदार पर्सनालिटी वाला वो आमिर खान था। और उसके ठीक पीछे खड़ी थी 16 साल की नरम नाजुक बिल्कुल गुड़िया सी मासूम शबाना, जो बिल्कुल उससे उसके कंधे तक ही पहुंच पा रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन दिल से निकली थी। बस एक सवाल और पूछना है, डांटना मत प्लीज। आमिर ने तिरछी नज़र से उसे देखा। उसकी मासूमियत पर गुस्सा भी आया और कहीं न कहीं एक हल्की सी मुस्कान भी होठों के कोने तक आकर रुक गई। उसके मासूम से चेहरे को देखकर वो बिल्कुल भूल चुका था कि ये शादी किस हालातों में हुई, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके दुश्मन की बेटी है। बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए उसने बड़े बिजली अंदाज में कहा, पूछो क्या पूछना चाहती हो? क्या सुहाग रात मनाना बहुत मुश्किल काम होता है? हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्लीज़ कर लीजिए ना। आपकी माँ ने यही कहा था कि आपसे शादी करनी है और शादी के बाद सुहाग रात भी मनानी है। वो डरी सहमी मासूमियत सी अपनी उंगलियां झटकते हुए बोल रही थी, और इस बार जो आमिर खान अपने दिमाग को बड़े सुकून में महसूस कर रहा था। नहाने से उसे एक नई ताजगी मिली थी, लेकिन शबाना के सवाल ने उसके दिमाग को फिर से सन्न कर दिया था। उसने हेयर ड्रायर पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखा था और पीछे मुड़कर शबाना को कंधे से पकड़ लिया।
तुम्हारे दिमाग पर ये जो सुहाग रात का भूत चढ़ा है ना, ये भूत तो उतारना ही पड़ेगा। ऐसी सुहाग रात मनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। कहकर उसने अपनी शर्ट उतारी और शबाना का एक झटके से खींचकर सीधे बेड पर ले गया। उसके ऊपर झुक गया था। उसने इतने पास आने पर शबाना की एक हल्की सी चीख निकल गई थी। उसने घबराकर आमिर की ओर देखा। आप ये क्या कर रहे हैं? जब कुछ समझ में ना आए तो वो सवाल कर बैठी, जबकि आमिर ने उसके नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और खुद उसकी गर्दन पे झुक गया। जैसे ही आमिर के लपकते हुए होठ शबाना की नाजुक गर्दन से छुए, एक अजीब सी सिरहन थी जो पूरे बदन में दौड़ गई थी। वो मर्द की इस छुअन से अनजान थी। शरीर के रगों में दौड़ता हल्का सुरूर उसे बुरी तरह बेचैन कर रहा था। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या था। गर्म सांसों में उसका नाजुक वजूद पिघल जा रहा था। गर्दन से होता हुआ वो उसके चेहरे की ओर झुका था। दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था और शबाना बुरी तरह घबराई हुई थी। आमिर उसके होठों से टूटे फूटे से शब्द निकलने और उस कांपते होठों को देखकर आमिर बेखबर हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। ये नरम नरम सा स्पर्श जो अब आमिर का था, और वो भी अपनी जायज बीवी के वजूद पर जिस पर उसका पूरा पूरा हक था, लेकिन उसके कम उम्र के चलते वो उसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता था। पर आज की रात उसे सबक सिखाना था और उसे समझाना भी बहुत जरूरी था, वरना ये लड़की हर रात उसका जीना हराम कर देती। अगले ही पल गहरी सांस लेते हुए आमिर ने शबाना के माथे पर अपने होठ रखे थे, फिर धीरे से उसके कान की लौ काट ली। उसकी हल्की दाढ़ी की चुभन से शबाना घबरा गई थी। आमिर के होठों का वो अजीब सा स्पर्श उसे बेचैन कर रहा था। वो खुद में सिमटी जा रही थी। उसे क्या पता था कि सुहाग रात ऐसे मनाई जाती है कि पति इतना करीब आ जाता है। आमिर ने उसकी छोटी सी नाक पर अपने होठ रखे तो उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि पापा और भाई के अलावा भी कोई मर्द उसकी जिंदगी में आया था, और वो भी इस तरह उसका पति बनकर, जो अब उससे अपना हक लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। शबाना के वजूद पर अपने स्पर्श की तस्वीर बिखरते हुए आमिर उसके बेहद करीब आता जा रहा था और शबाना के होश जैसे उड़ चुके थे। शबाना के खूबसूरत नाजुक बदन को देखकर एक पल के लिए आमिर भूल गया कि उसे सिर्फ और सिर्फ शबाना को डराना था, उसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना था, उस पर अभी से रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी थी। जज्बातों से बेकाबू होकर वो अपने दांतों से शबाना को थोड़ी सी तकलीफ भी दे गया था। शबाना की सिसकी निकल गई। आमिर ने फिर से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और गर्दन के साथ साथ उसके गले और उसकी मुलायम धड़कनों पर भी अपने लपकते हुए होठ रखने लगा। शबाना की हालत बेकाबू हो रही थी, जबकि उसका हुस्न आमिर को और भी पागल कर रहा था। शबाना की आंखों से आंसू छलक आए थे, उसके नरम वजूद पर अपने होठों की छाप छोड़ते हुए। जैसे ही आमिर ने शबाना के चेहरे की ओर देखा तो अचानक वो होश में आया था। शर्मिंदगी का एक गहरा एहसास आमिर की रग रग में भर गया। वो एक झटके से उससे दूर हुआ था। बेड से उतरते हुए उसने नीचे जमीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और शबाना की ओर बढ़ा दिया। ये लो दुपट्टा ओढ़ लो और अपने आप को ठीक कर लो। आज के बाद सुहाग रात का नाम भी मत लेना मेरे सामने।
शादी की पहली रात हर लड़के और लड़की के जीवन की एक खूबसूरत और स्पेशल रात होती है, जिसे दूल्हा दुल्हन मिलकर अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार बनाते हैं। हम भी अपनी इस रात को यादगार बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, बल्कि सही वक्त आने पर। सुबह अगर माँ पूछे तो उन्हें बस इतना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है। इस लाइन के आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, तुम्हें वो खुद सब कुछ समझ जाएगी, कहकर वो सीधे सोफे पर जाकर लेट गया, जबकि शबाना कांपती हुई कंबल में घुस गई थी, बल्कि कंबल पूरा सर तक तान लिया था और खुद को पूरी तरह छुपा लिया। जो कुछ आमिर ने अभी उसके साथ किया था, वो सब उसके लिए बेहद शर्म का कारण था। अगले ही पल उसने अपना जरा सा सर निकालकर सोफे पर लेटे हुए आमिर की ओर देखा था और कुछ देर पहले की गई आमिर की शरारतें याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर चुकी थी। उसे तो अभी शादी का मतलब तक मालूम नहीं था। निकाह और रिश्तों की गंभीरता ये सब कौन समझाता। उसे उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर था जिसमें मीठी सी गुदगुदी भी शामिल थी। आमिर का छूना उसे बहुत अच्छा लगा था। वो सिर्फ 16 की थी और अभी तक उसने गुड्डे गुड़ियों के साथ ही खेली थी। मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके पूरे दोपहरी हवेली में क्रिकेट खेलती थी या फिर पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ती, खट्टे मीठे फालसा खाया करती। उसे जिंदगी के इस गंभीर मामले का कोई हल, कोई इल्म नहीं था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बदल चुका था। जुर्म किसी और ने किया था और सज़ा शबाना को मिली थी, और उसे सज़ा के तौर पर आमिर खान की दुल्हन बना दिया गया था। उसके अपने ने ही उस मासूम सी शबाना को दगा दिया था। अपने घर वालों को याद करते हुए शबाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिन भर की थकी हारी सोच सोचकर खुद को और ज़्यादा परेशान करने के बजाय आंखों से आंसू पोंछे और सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में थी, जबकि सोफे पर लेटा हुआ आमिर उसके चेहरे की ओर पलटकर देखे जा रहा था। इस लड़की को निकाह के आए हुए बस एक ही दिन हुआ था, मगर वो उसे अपनी तरफ खींचने में बुरी तरह कामयाब हो चुकी थी। नींद में उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और मासूमियत जैसे कोई कहानी सुना रही थी। माथे पर चोट का निशान भी था, वो चोट जो कल आमिर की माँ ने उसे दी थी। नई बहू का स्वागत कुछ यूं किया गया था, लातों घूंसों और थप्पड़ से, मगर आमिर ने बीच में आकर उसे बचा लिया। कल का मंजर याद आते ही आमिर का दिमाग घूम गया था। गुस्सा उसकी नस नस में उतर गया। वो झटके से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शबाना अभी तक मीठी नींद में सो रही थी। उसे खबर तक भी नहीं थी कि उसका शौहर क्या कर रहा है और कहाँ चला गया है। उसे तो बस अपनी माँ की याद आ रही थी। अपने आंसुओं से उसका वास्ता था, जो याद करते करते वो सो गई थी। अभी तो शबाना के बहुत से इम्तिहान बाकी थे, जिसमें उसे कामयाबी के साथ गुजरना था। मेरी बात सुनिए, शबाना ने कंधा पकड़ के झिकझोड़ा। जब उसने पूरी नींद में डूबी आंखें मुश्किल से खोलकर उसकी ओर देखा, वो सामने ही खड़ी थी, मुंह फुलाए हुए। उसके कमसिन चेहरे पर मासूमियत बहुत प्यारी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें झपकते हुए वो आमिर को अपनी ओर खींच रही थी। सामने लगे घड़ी पर नजर गई तो सुबह के 3 बज रहे थे। 2 बजे तो वो सोने के लिए लेटा था। आमिर की नींद एकदम से उड़ गई। हाँ बोलो, क्या है? वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। कुछ तो था जो उनके बीच के रिश्ते की गहराई को बढ़ा रहा था। वो मुझे भूख लगी है,
اب وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں عامر اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پہلی بار بھوک لگنے پر اسے کسی سے کچھ مانگنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لیے آنسو آ رہے تھے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ میں ابھی لے کر آتا ہوں، پہلے ہی بتا دیتی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ وہ کچن میں آیا اور کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا، لیکن کھانے کے نام پر کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ نئی بات نہیں تھی، رات کا سارا بچا ہوا کھانا نوکر کو دے دیا جاتا تھا اور صبح تازہ فریش کھانا بنتا تھا۔ اسے کوکنگ تو آتی نہیں تھی، اس لیے سارے فروٹس کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ایک باؤل میں ڈال لیا، اوپر سے کریم، چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر کمرے میں واپس لایا۔ دیکھو مجھے کھانا نہیں آتا، مگر تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ جب شبانہ نے وہ فروٹ چاٹ دیکھی تو ایک دم سے بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ عامر جی، یہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ پاپا جب بھی شہر سے آتے تھے تو میرے لیے ضرور لے کر آتے تھے، اور میں تو ضد کر کے بھی منگوا لیا کرتی تھی۔ اس میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں، اس نے خوشی کے مارے عامر کے گلے لگتے ہوئے کہا، جبکہ عامر وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نرم اور مہربان باہوں کا اسپرش اس کے جلتے ہوئے دل پر جیسے ٹھنڈی فوہار بن کر برس رہا تھا۔ دل نے اس پل ایک بے ایمانی کی تھی۔ سر جھکا کر اپنے گلے سے لپٹی چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے اوپر بیتے کل سے اب تک کا نہ جانے کتنے کتنے قیامت ٹوٹ چکے تھے۔ اپنی باہوں کا گھیرا اس کی گردن کے چہرے اور کستے ہوئے عامر نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اب جلدی سے فروٹ چاٹ ختم کرو اور سوؤ، مجھے صبح وقت پر اٹھنا بھی ہے۔ وہ ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے بڑی فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ بے شک خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس کے کمسن چہرے پر بے حساب حسن تھا۔ ہلکی گلابی لیے اس کی سفید رنگت، گال اور ناک کو ٹماٹر کے جیسے لال ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی ہلکی سوجی ہوئی آنکھیں جو شاید کل بہت زیادہ رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لال ہونٹ، چھوٹی سی ناک، لمبی سراہی گردن، بال بکھرے ہوئے صاف جھلک رہا تھا کہ 2-3 دن سے کنگھی ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سب مل کر اسے بے حد دلکش بنا رہے تھے۔ گال کے پاس ایک چھوٹا سا کالا تل جیسے نظر کا ٹیکا لگتا تھا۔ وہ شبانہ کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ شبانہ نے فروٹ چاٹ ختم کر لی ہے اور اب وہ باؤل رکھ کر چین سے صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ عامر نے پیالہ اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ اب وہ اسے کمرے میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کل بھی وہ کمرے سے باہر گئی تھی اور کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا؟ اس سوچ سے عامر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سنو، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ یہاں لیٹنے سے کمر درد کر رہی ہے، تمہاری کمر بھی درد کرنے لگے گی۔ عامر نے اس کا بازو پکڑ کے اسے بیڈ پر بیٹھایا، مگر دل نے پھر سے انکہی سی خواہشیں کرنا شروع کر دی جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شبانہ کی عمر کم تھی، وہ سوچتے ہوئے وہ باتھ روم چلا گیا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو شبانہ پھر سے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد معصوم اور دلکش لگ رہا تھا، اور عامر چاہ کر بھی اس کی طرف ٹکٹکی باندھے بنا دیکھے نہیں رہ پا رہا تھا۔ صوفے پر سونے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے اٹھ کر کچھ دیر کمر سیدھا کرنے کے ارادے پر فرش پر لیٹ گیا۔ فرش پر میٹریس تو تھا نہیں، مگر صوفے کی تلنا میں یہاں اس کی کمر کو سکون ملا تھا۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ تبھی شبانہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھی اور سیدھے عامر سے ٹکرا گئی اور دھڑام سے اس کے اوپر جا گری۔
आमिर ने नींद में ही अपने बाजुओं को घेरा, उसकी कमर की ओर कस दिया, फिर एक हाथ से उसका सर थामते हुए अपने सीने पर रखा और धीरे से बुदबुदाया, सो जाओ अगर जान प्यारी है तो, वरना अगर मैं जाग गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं बस अभी बाथरूम होकर आती हूँ। वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी और एक झटके से खुद को आमिर की मजबूत बाहों से निकालते हुए बोली और सपाट बाथरूम की ओर भाग गई। उसकी इस घबराहट पर आमिर मुस्कुराकर रह गया। पागल लड़की, किसी दिन मुझे भी पागल कर देगी। काफ़ी देर बाथरूम में बिताने के बाद जब वो बाहर आई तो आमिर को वैसे ही फर्श पर सोते देखा। उसे उस पर तरस आ गया। बात सुनिए, आप भी बेड पर आ जाइए, हम एक साथ सो जाते हैं। मैं सोते हुए लात नहीं मारती, खर्राटे भी नहीं लेती और ज़्यादा तंग भी नहीं करती। आपको मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक कोने में मैं सो जाती हूँ और दूसरे कोने में आप। इस तरह नीचे लेटने से कमर में और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। वो चेहरे पर अपनापन और फिक्र लिए आमिर को देख रही थी। बार बार उसे बेड पर चलकर सोने के लिए कह रही थी, लेकिन आमिर था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर मैं उसके बगल में सोऊंगा तो शायद हमारे बीच कुछ हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं चाहता। बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और उसके दर्द का हवाला दे रही थी। तब आमिर को भी एहसास हुआ कि फर्श पर सोने से उसकी कमर अकड़ गई और पता चले कि सुबह उसे उठा भी नहीं जा रहा। बचाए उसे उलझने के आमिर चुपचाप उठा और उसके साथ ही बेड पर जाकर लेट गया। शबाना भी खुशी से उसके बराबर में आकर लेट गई, लेकिन बेड पर सोते ही शबाना को नींद आ गई। बेड पर दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाए सोए थे, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास पनपने लगा था। अचानक ही दोनों एक दूसरे के सामने हो गए। आमिर की नज़र जैसे ही शबाना की कमर पर पड़ी, वो बेकाबू सा होने लगा और फिर अचानक ही। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे दूसरे भाग में कि क्या आमिर शबाना को पूरी तरह अपना पाएगा या फिर खुद पर काबू करके गहरी नींद में सो जाएगा। क्या आमिर की माँ का वचन पूरा हो पाएगा या फिर अधूरा ही रह जाएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग में।